Hello, my dear students. How are you all? A very good morning, good afternoon, good evening. Okay? Yes. तो कैसे लग रहा है डायरेक्ट टैक्सेस? मज़ा आ रहा है आप लोगों को? Okay? Yes. Now, let's quickly see what we have covered till now so that we can go ahead and do some important concepts today. ओके तो जैसे कि आपको पता है मैंने आपको दो पीडीएफ्स शेयर किए थे. एक पीडीएफ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था, राइट, जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एंड ऑल दैट विच वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. एंड सेकंड जो पीडीएफ मैंने शेयर किया था वो किसके था? टैक्स रेट्स का था. ओके, आई वांटेड यू टू राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ इन योर नोटबुक्स. जिनके पास नई बुक आई है, ओके, उनके बुक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ओके, सी, understand, my dear students, why I want you to write this. Because until and unless you write these things, unless and until it is revived by you again and again, you cannot retain it. Okay, MCQs is the most dangerous part of the story. Okay, लोगों को लगता है MCQs है मतलब कोई फिक्र ही नहीं है. Okay, पढ़ाई नहीं करी तो भी चलता है, जितना पढ़ाई करना है उतना पढ़ाई किया तो भी चलता है. No, it's not like that. When theoretical questions are asked, when you have to write a lot of theory. At that time what happens, you can write, even if you do not recall the exact concept, but if you can at least recall the background of it, या थोड़ा सा आगे पीछे का भी याद होगा, तो हम क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के जोड़ के लिख लेते हैं. But in case of MCQs you have to be absolutely perfect in चूजिंग कि आपको क्या करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, कौन से आंसर को आपको सिलेक्ट करना है. ओके, इन दैट केस यू हैव टू हिट द बुल्स आई. योर कॉन्सेप्ट्स हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, यस, लेट्स गो अहेड फर्दर. ओके, लेट्स रिवाइज कि अब तक हमने क्या किया. हमने डायरेक्ट टैक्सेस चालू किया, डायरेक्ट टैक्सेस का थोड़ा बहुत थ्योरी देखा. ओके, आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद सेक्शन 4, दैट इज अ चार्जिंग सेक्शन. व्हाई डिड वी स्टार्ट विद सेक्शन 4 फर्स्ट? बिकॉज अंटिल एंड अनलेस वी अंडरस्टैंड द चार्जिंग सेक्शन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इनकम टैक्स एक्ट 1961. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन टेल्स अस कि किस पे इनकम टैक्स चार्ज होगा, कौन से साल पे चार्ज होगा, कितने रेट पे चार्ज होगा, कौन से अमाउंट पे चार्ज होगा, राइट, एवरीथिंग. ऑल दीज क्वेश्चंस आर finally answered by charging section 4. Okay, yes, what does section 4 say? Section 4 says every person whose total income of previous year exceeds maximum amount which is not chargeable to tax is an assessee and chargeable to income tax at rates prescribed in Finance Act for relevant previous year. So from this charging sections, first we decided to learn the important concepts, and then at the end, once the concepts are learned, we will again go through this section 4. So the first important concept that we discussed here is person. Person has been defined under section 231. Okay, so definitions, we have seen that section 1 gives us short title, extent and commencement, SEC, of a particular act, right? Section 2 gives us the definitions. Under income tax act, the definition of person is individuals. Under individuals, what are who are included? Male, females, minors, majors, married, unmarried, sound mind, unsound mind, living, deceased, right? Now in case of minor and unsound mind, as we have seen that these people are not eligible to contract, right? So in that case, who will represent them? They are guardians or they are managers, right? In case of deceased, in case of dead, बराबर है ना, उन्होंने वो मर तो गए, बट उनके जो पिछले कर्म हैं, उन्होंने जो इस जन्म में अपने कर्म करके गए हैं, वो तो उनको भुगतना पड़ेगा, राइट? सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, इवन इफ द पर्सन इज डेड, ओके, उनका हर इंसान का एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है. द लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैज टू टेक द what responsibility and the charge. Okay, yes, so individuals, HUF, company. Okay, HUF is what Hindu undivided family is also person. Company, under company we have domestic company, foreign company and corporations. Okay, so under company we saw few very important things, very 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 important. Okay, Indian company, foreign company, domestic company. Actually company has been defined under section 217. What does section 217 says? That there are companies which are either registered in India or which are registered outside India. When we say they are registered in India, that means they are registered under Companies Act 2013. When a company is registered in India, that company is always an Indian company. Very very important. Okay, always an Indian company. The company which is registered in India is always an Indian company. Okay, now if a company is registered outside India, check dividend कहाँ declare करते हैं? Okay, if dividend is declared in India, that particular company becomes domestic company, and if dividend is declared outside India, that company becomes a foreign company. In case of domestic company, see, understand, Indian company means what?
I'll write here for you. Okay. Yes. So, Indian company. Yes. Okay. Now, Indian company. Indian company means what? Indian company means a company registered in India. Okay? Fine. No problem. Okay. Okay. Now, what does domestic companies mean? What does domestic company mean? Domestic company means Indian company. Okay? Indian company that is registered in India. Plus, it also includes company registered outside India declaring dividend in India. Declaring dividend in India. Okay? And in case of foreign company, registered plus dividend. Okay? Both the activities are happening outside India. Do you understand, my dear students? Okay? Do you get it, my dear students? Okay? Yes. Now, okay. Fine. Done? Okay, so this is the meaning of company. So under persons, what have we seen? Individuals, HUF, company, AOP, BOI. AOP is what? Association of persons. BOI is body of individuals. Then we have seen partnership firms. What is meant by partnership firms? Partnership firm includes partnership firm as well as LLP. Okay, partnership firm means what? Two or more persons come together. Okay, they form a partnership deed. Okay, yes. Further, LA means what? Local authority. Right, district boards, panchayats, municipalities, cantonment board, etc. AJP is what? AJP means artificial juridical person. Universities, cooperative society, trusts, and even God has been covered because they want to cover even the huge donations, which the temples receive. Okay, now here if you see, local authority is covered, but is central government, state government covered? No, that means central government, state government are what? Are not persons for income tax act. मतलब इन पे income tax act applicable नहीं होगा. Okay, yes. So अगर आप definition of person देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि every person who is capable of earning income, every person who is capable, everyone who is capable of earning income has been covered under income tax act. Okay, yes. Now next important thing. ओके कि उनका क्या कहना है कि अगर आपने कंपनी फॉर्म करी, ओके, अगर आपने कंपनी फॉर्म करी दैट मीन्स पर्सन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस. एंड इफ अ पर्सन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, ओके, आप बिजनेस करो या ना करो, प्रॉफिट्स अर्न करो या ना करो, ये आपकी बात की बात है. ओके, पर अगर आप बाकी के कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आप पे इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट पर्सन. व्हाट डज सेक्शन 4 फर्दर से? सेक्शन 4 सेज एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम. ओके, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम मतलब हर इंसान, हर पर्सन, ओके, हुज टोटल इनकम मतलब अभी पहले इनकम मतलब क्या आपने को समझना पड़ेगा. राइट, इनकम हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 224. ओके, इनकम, अगर हम इनकम ये कॉन्सेप्ट जनरल में देखेंगे तो इट इज़ व्हाट? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज नथिंग बट इनकम. नाउ अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनका क्या कहना है कि आप जो इनकम अर्न करते हो वो कैश में हो चाहे काइंड में हो चलेगा, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. अगर आपको कहीं से भी इनकमिंग हो रहा है, अगर आपको कहीं से भी कोई इनकम आ रही, excuse me, I'm so sorry, I'm just not keeping well, इसलिए मैंने आज वीडियो भी ऑन नहीं किया है. I'm just not keeping well, please bear with me. Okay, yes. तो what does section 224 says? अगर आपको कोई भी प्रकार का इनकमिंग हो रहा है, in that case it will be treated as income. Okay, मतलब हर इंसान को इनकम जो है वो अनलिमिटेड सोर्सेज से आ सकता है, राइट. बट अंडर इनकम टैक्स एक्ट हमने इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है? सारे इनकम को 5 हेड्स में क्लासीफाई करता है. विच आर द 5 हेड्स? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, अब सैलरी बोले तो
व्हाट इज मेंट बाय सैलरी? सैलरी में कौन सा इनकम कवर होगा? जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में होता है उसको क्या कहा जाता है? सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी, जिसको भी हम कोई भी हाउस ऑफिस भाड़े पे देते हैं, रेंटल इनकम इज कवर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। पीजीपीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, अगर हम कोई प्रोफेशन करते हैं और अगर उनसे हमको कोई रेवेन्यू होता है तो वो कहाँ पे कवर होता है? इट इज़ कवर्ड इन पीजीबीपी। ओके, कैपिटल गेन्स, ओके, जो भी अपने पास जो कैपिटल एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग, गाड़ी, राइट, तो ऑफिस, ये सारी चीज़ें, इन सारी कैपिटल एसेट्स से रिलेटेड अगर कुछ भी इनकम होता है तो वो कहाँ पे जाता है? कैपिटल एसेट्स में जाता है, सॉरी कैपिटल गेन्स में जाता है। और अगर जो इनकम इन चारों में नहीं बैठता वो कहाँ पे जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। मीन्स दैट इज द रेसिडुअल हेड। इंटरेस्ट है, डिविडेंड्स है, ये सब कुछ कहाँ पे जाता है? इट गोज इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर हम सेक्शंस देखेंगे तो सैलरी में कौन से सेक्शंस है? 15 to 17, हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27, पीजीबीपी 28 to 44 डीबी, कैपिटल गेन्स 45 to 55 ए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 to 59। और हर हेड का पहला सेक्शन इज ऑलवेज अ चार्जिंग सेक्शन। क्यों? अब फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम अगर पूरे इनकम टैक्स को अगर है चार्जिंग सेक्शन तो फिर से 5 हेड्स को क्यों चार्जिंग सेक्शन चाहिए? बिकॉज दिस चार्जिंग सेक्शन टेल्स अस कि इन 5 हेड्स में कौन सी इनकम कवर होगी और कौन सी इनकम कवर नहीं होगी, राइट? बिकॉज ऐसा हो सकता है कि हम वी कैन गेट कंफ्यूज कि अपना हेड ऑफ अपना जो इनकम है वो कौन से हेड में जाएगा, राइट? ऐसा कंफ्यूजन ना हो। ओके, टू गिव क्लैरिटी, ओके, उन्होंने क्या किया है? हर सेक्शन को एक चार्जिंग सेक्शन दिया है। अंडरस्टैंडिंग? ओके, यस। नाउ लेट्स गो अगेन टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ पीवाई exceeds of PY मतलब क्या? Previous year. Let us understand what is the concept of previous year under Income Tax Act. See, understand years. When we speak of years are always of 2 types: financial year and calendar year. Financial year starts from 1st April to 31st March, and calendar year जैसे अपना calendar है, right? 1st January to 31st December. Okay, Income Tax has adopted the financial year as the year. Okay, अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि इनकम एक साल में इनकम जो है वो हमने कब अर्न करी? 20-21 में अर्न करी, बट उसका टैक्स हमने कब पे किया? 21-22 में उसका टैक्स हमने पे किया है। मतलब इनकम इज अर्न इन 1 ईयर एंड इनकम इज टैक्स इन अनदर ईयर। तो जिस साल में हम इनकम अर्न करते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो नोन एज PY। ओके, और जिस साल में इनकम टैक्स होती है उसको कहा जाता है उसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर, दैट इज AY. ओके, PY इज नॉट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 12 months, बट AY इज ऑलवेज ऑफ 12 months. ओके, अब PY का कंसिडरेशन, जब PY का डेट हम लोग देखेंगे तो डेट ऑफ सेटअप ऑफ बिजनेस लेंगे कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेंगे. उनका इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है? द मोमेंट अ पर्सन कम्स इन टू एग्जिस्टेंस. इनकम टैक्स के अगर दूसरे कंडीशन उसने कॉम्प्लाई किए तो क्या होगा? इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे हम लोग ये नहीं देखने वाले कि आपने बिजनेस चालू किया क्या नहीं, आपने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया. दैट इज योर लुकआउट. आपका बिजनेस है, आपके डिसीजंस हैं, यू टेक योर ओन डिसीजंस. हमको तो सिर्फ हमारे इनकम टैक्स से मतलब है, राइट? सो डेट ऑफ सेटअप टू 31st March, ओके, इज व्हाट इज द पीरियड ऑफ PY अगर नया बिजनेस होगा तो. ओके, यस, हमने और क्या देखा कि एवरी ईयर प्लेज अ ड्यूअल रोल. कभी वो PY है तो कभी वो AY है. अंडरस्टैंडिंग? ओके, यस. देन देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस. हमने क्या देखा? इनकम इज अर्न इन PY, टैक्सड इन AY, बट देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस. मतलब इनकम इज अर्न इन PY एंड टैक्स इज ऑल्सो इन PY ओनली. ओके, मतलब अगर ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कि ये बिना टैक्स दिए अगले साल बिना टैक्स दिए गायब हो जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? अभी के अभी टैक्स पे करके क्या करो? हमारे ऑब्लिगेशंस मीट कर दो. ओके, सो शिपिंग बिजनेस ऑफ NR, पर्सन लिविंग इंडिया, AOP BOI फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, पर्सन ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी फॉर अवॉइडिंग टैक्स, डिसकंटिन्यूड बिजनेस. दीज आर द डिफरेंट these are the exceptions wherein PY में ही इनकम ऑन होता है और PY में ही टैक्स भी आता है. आगे, okay, so every person, we've seen person whose total income of PY exceeds maximum amount which is not chargeable to tax is an assessee. Okay, is an assessee. मतलब assessee मतलब कौन? What is meant by assessee now? Assessee is a technical word जो income tax में use होता है. Okay, to all those जिनको क्या करना है?
Just 1 minute. यस, तो इनकम टैक्स एक्ट, जैसे हमें क्या होता है, कैदी नंबर होता है, राइट? इन द सेम वे इनकम टैक्स एक्ट हमको कैसे याद रखता है? बाय द नेम असेसी. ओके, यस, असेसी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(7). असेसी इज रिटन एज AA, स्मॉल AA. ओके, अब असेसी मतलब कौन? एनी पर्सन, कोई भी प्रकार का पर्सन क्यों ना हो, हु इज लायबल टू पे टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट. पेमेंट ही नहीं, जिसको रिफंड भी ड्यू होगा वो भी असेसी होगा. जिसको इनकम होता है उस पर तो हम इनकम टैक्स लेंगे, जिसको लॉस होता है वो भी हमारा असेसी है. ओके, अगर ट्रस्ट होगा तो ट्रस्टी, बाइनर ल्यूनेटिक होगा तो मैनेजर गार्डियन, जो भी एनीवन हु रिसीव्स इनकम वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड असेसी. ओके, इन केस ऑफ डेड या नॉन रेसिडेंट तो उनके रिप्रेजेंटेटिव असेसी. ओके, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अगर उससे if an assessee does not pay tax, okay, does not deduct TDS or deducts TDS but does not remit TDS or any other such sum, will be known as assessee in default. Okay, yes, so these are the different kinds of assessees defined under section 2(7). okay, आगे क्या बोला गया है section 4 में? आगे section 4 tells us that which is not chargeable to tax is an assessee and chargeable to income tax at rates prescribed in FA for relevant PY. मतलब क्या? Okay, मतलब क्या? There's a percentage of income tax also. What is this percentage? It is known as rates. Rates of income tax has been given in Income Tax Act or Finance Act. Okay, see, understand my dear students. Income Tax Act 1961, बराबर है? हम कौन से साल में हैं अभी? हम कौन से साल में? 21वीं सदी, राइट? ऐसे ही बोलते हैं ना, 21st, 22nd, 23rd, पता नहीं कौन से कितनी सेंचुरीज, राइट? बट ये कौन से साल का था? 1961 का, राइट? देन हाउ would those rates be applicable now? बराबर है ना, राइट? सो इसलिए क्या होता है, हर साल बजट में हम लोग क्या लेके आते हैं? स्लैब रेट्स लेके आते हैं, राइट? परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स कितना कलेक्ट करना है हर साल बजट में डिक्लेयर किया जाता है, राइट? हेंस यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के जो रेट्स है विच दे अपीयर इन फाइनेंस एक्ट or income tax act, they appear in finance act, okay, and not in income tax act, right? So now rates are of two types, slab rates or flat rates. Slab rates are applicable to individual HOF, AOP, BOI, HAP, but flat rates are applicable to company, firm, LLP, LA. What is meant by slab rates and what is meant by flat rates? Slab rates मतलब क्या? There is certain basic exemption limit. ओके, अगर हम लोग ने सेक्शन 4 अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा तो क्या बोलता है सेक्शन 4 सेज दैट मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स. मतलब ये जो अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है इसको क्या कहा जाता है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? स्लैब रेट्स में अवेलेबल होता है. बट इन केस ऑफ फ्लैट रेट्स इज देयर एनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? एब्सोल्युटली नो. फ्लैट रेट्स मतलब क्या? अगर आपने 1 रुपये इनकम भी लिया तो आपको इंटू जो भी रेट रहेगा वो करके यू विल हैव टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स एक्ट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्लैब रेट्स एंड फ्लैट रेट्स. ओके, yes, now the next thing that I'm going to tell you is very important from MCQ's point of view. हमने क्या देखा कि a particular person may earn income from unlimited sources, but this income is further classified into 5 heads. अब इस 5 heads में भी कुछ स्पेशल केसेस है, स्पेशल टाइप ऑफ इनकम्स है. ओके, तो अगर आप स्पेशल इनकम अर्न करते हो तो उस पर स्पेशल रेट्स एप्लीकेबल है, और अगर आप नॉर्मल इनकम अर्न करते हो तो उस पर नॉर्मल रेट्स एप्लीकेबल है. ओके, अगर स्पेशल रेट्स और नॉर्मल रेट्स, नाउ स्पेशल रेट्स आर मेंशन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वेयर एज नॉर्मल रेट्स आर मेंशन्ड इन द फाइनेंस एक्ट. ओके, अब ये मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स हमने क्या देखा? दिस इज नोन एज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर PY, that is from 2021, government, the Income Tax Act gives the assessee two options. Option 1, option 2. What is this option 1, option 2? पहले broadly समझ में लेते हैं. Option 1, option 2 मतलब क्या? what does the Income Tax Act say? कि हमने क्या किया? आपके सारे अनलिमिटेड सोर्सेज को क्या किया? हमने 5 हेड्स में उसको रिड्यूस किया. उसके बाद हर हेड के अंदर आपको एग्जेम्पशंस हैं, हर हेड के अंदर आपको डिडक्शंस दिए गए हैं, बराबर है? आप इनका बेनिफिट लेते हो, फिर अपना इनकम कम करते हो, और फिर उस कम वाले इनकम पे आप क्या करते हो? टैक्स पे करते हो, राइट? दिस इज ऑप्शन 1 विच हैज बीन अवेल्ड टिल नाउ. व्हाट डज ऑप्शन 2 सेज? ऑप्शन 2 क्या बोलता है? गोली मारो, सारे एग्जेम्पशन, सारे डिडक्शंस को गोली मारो. ओके, कोई भी बेनिफिट मत लो और बिना कोई भी बेनिफिट लिए इस रिड्यूस्ड टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट करो. ओके, सो वी हैव ऑप्शन 1, वी हैव ऑप्शन 2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड इज वेदर ऑप्शन 1 इज बेनिफिशियल और ऑप्शन 2 इज बेनिफिशियल. तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन 1 के अंडर टैक्स निकालेंगे, ऑप्शन 2 के अंडर टैक्स निकालेंगे. हाँ, तो क्या हर बार मुझे दोनों ऑप्शन सॉल्व करने हैं? यस,
ओके तो दोनों आंसर से हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे और जो भी टैक्स, जो भी ऑप्शन के अंदर जो टैक्स कम रहेगा, वी शैल बी अडॉप्टिंग दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके यस. तो पहले हम लोग ऑप्शन 1 को डिटेल में समझते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन 2 की तरफ जाएंगे. ऑप्शन 1 क्या बोलता है? इंडिविजुअल हैज डिफरेंट स्लैब रेट्स. HUF, AOP, BOI, AJP हैव डिफरेंट स्लैब रेट्स एंड अदर असेसीज, कंपनी, फर्म, LLP हैव व्हाट? फ्लैट रेट्स. ओके, इंडिविजुअल के केस में वी हैव टू चेक रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है. ओके यस. तो यहाँ पे मैंने आपको स्लैब रेट्स दिए हैं, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3. वाई 3 स्लैब्स एज वाइज, बराबर है. मतलब क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले चेक करो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है. अगर रेसिडेंट है तो 3 स्लैब्स आर अवेलेबल. अगर नॉन रेसिडेंट है तो ओनली 1 स्लैब इज अवेलेबल. अगर रेसिडेंट है तो नेक्स्ट क्राइटेरिया एज. ओके 0 to 59 years, 0 to 59 years, 60 to 79 years, they are known as senior citizens, and 80 years and above will be known as super senior citizens. What are the slab rates? 0 to 2,50,000, 0%, 2,50,000 to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%, above 10 lakh, 30%. Okay, फिर सीनियर सिटीजन 0 to 3 लाख, 2,50,000 का 3 लाख कर दिया. 0%, 3 लाख से 5 लाख, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%, and above 10 lakh, 30%. In case of super senior citizens, 0 to 5 lakh, 0%, 5 lakh to 10 lakh, 20%, and above 10 lakh is 30%. Okay. In case of non-resident, only slab 1 is available, irrespective of whatever age be, age be prevalent. Okay. The only option available is slab 1. Okay. Getting it, my dear students? Okay. Yes. आगे हमने क्या किया? हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, राइट, टू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. एक एग्जांपल लेके हमने क्या किया? अलग अलग तीनों स्लैब्स को अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करी. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? मैंने एक होमवर्क में आपको क्या दिए थे? 4 क्वेश्चन सॉल्व करके लाने को कहा था, राइट. आई वॉन्टेड टू ट्राई सॉल्विंग दीज क्वेश्चन ऑन योर ओन. ओके, आई होप आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किए होंगे. ओके यस, लेट्स गो अहेड फर्दर. ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? हम लोग क्या करेंगे? विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस अगेन राइट नाउ. ओके, पहले तो हम इसके आंसर्स देखते हैं कि आपको क्या क्या आंसर्स आए. 10,40,000 इनका टैक्स कितना आया? जस्ट अ मिनट. यस, 1,24,500. ओके, फिर इनका टैक्स कितना आया? मिसेस एक्स का टैक्स कितना आया? 2,33,000. ओके, फिर इनका टैक्स कितना आया? 2,50,000. मिसेस बी का टैक्स कितना आया? 76,500. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जिनका आंसर्स करेक्ट है. या अगर आपको सॉल्व करने नहीं आया तो आई विल सॉल्व इट विथ यू राइट नाउ. ओके, आई डोंट नो इतना अजीब सा क्यों लिख रहा है पेन. ओके, लेट्स गो अहेड, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके, अब मिस्टर एक्स, अब देखते हैं कि मिस्टर एक्स का इनकम कितना है, उनका एज कितना है, उनको स्लैब कौन सा एप्लीकेबल होगा. सो फर्स्ट हम लोग किसका सॉल्व कर रहे हैं? मिस्टर एक्स का एज कितना है? 38 ईयर्स. तो अब मुझे बताओ स्लैब 1, स्लैब 2 या स्लैब 3 व्हाट विल बी एप्लीकेबल? स्लैब 1 0 to 59 ईयर्स, बराबर है. इज मिस्टर एक्स कवर्ड इनटू 0 to 59 ईयर्स? एब्सोल्युटली यस. ओके, सो इनका इनकम कितना है? और इनका इनकम है 10,40,000. आई डोंट नो इसका विड्थ क्यों नहीं बढ़ रहा. ठीक है, नेवर माइंड. ओके, 10,40,000. ठीक है. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग स्लैब्स लिखेंगे, राइट. सो 0 to 2 lakh, yes, 0 to 2 lakh, 2.5 lakhs. ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस. तो कितना परसेंटेज है? 0%, बराबर है. अब मेरा इनकम 10,40,000 है, मतलब तीसरे स्लैब के ऊपर है. सो 2.5 lakhs to 5 lakhs. माई इनकम इज हाउ मच? 5%, बराबर है. 5 lakhs to 10 lakhs इज हाउ मच? 10%, बराबर. सॉरी 20%, सॉरी, राइट. और मेरा इनकम कितना है? 10,40,000, मतलब 10 lakhs to 10,40,000. My income is 30%. Correct? Okay. So upper limit minus lower limit. 2.5 lakhs minus 0 becomes how much? 2,50,000 into 0%. 0. Right? Up 2,50,000 into 5%. 12,500. Then 5 lakh
10 लाख माइनस 5 लाख इंटू 20% is 1 lakh, and 40,000 into 30% becomes how much? 12,000. So total tax liability comes to 1,24,500. बोलो कितने लोगों का आंसर करेक्ट आया? सी अंडरस्टैंड, दिस इज़ द वेरी 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 बेसिक थिंग. ये आना हमको जान से ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ एब्सल्यूटली इंपॉर्टेंट. डू नॉट इग्नोर दिस. हर एक होमवर्क रोज अच्छे से ऑनेस्टली सॉल्व करना. आफ्टर सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स, आफ्टर सॉल्विंग द होमवर्क, अपना सेशन जब कंप्लीट होगा यू विल रियलाइज कि आपका कितना वैल्यू एडिशन हुआ है. दिस इज एब्सल्यूटली 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 important. Okay, let's go to the next example of Mrs. X. Okay, अगला कैलकुलेशन करते हैं हम Mrs. X का. Okay, Mrs. X. Okay, अब Mrs. X की एज कितनी है? 60 ईयर्स. हम यहाँ पे हमने सारे रेसिडेंसी लिए हैं. ओके, और इनका कितना है इनकम? 14,10,000. अब मुझे बताओ Mrs. X कौन से स्लैब में कवर होगी? कम ऑन, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स. मिसेज एक्स कौन से स्लैब में कवर होगी? स्लैब 1, स्लैब 2 या स्लैब 3? मिसेज एक्स का एज क्या है? मिसेज एक्स एक तो रेसिडेंट है, इसलिए उसके पास तीन स्लैब्स के ऑप्शन है, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3. अब हमको उनका एज चेक करना पड़ेगा. एज उनका कितना है? 60 ईयर्स. ओके, पहला स्लैब कितने का है? 0 to 59 ईयर्स. ओके, 60 ईयर्स के हैं, मतलब ये कहाँ पे आएंगे? सेकेंड स्लैब में आएंगे. तो ओके, सेकेंड स्लैब का पहले स्लैब्स लिख लेते हैं एंड देन वी कैन मूव अहेड. ओके, सो स्लैब्स क्या है? 0 to 3 lakh, 0%, 3 lakh to 5 lakh, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%. बराबर है. मेरा इनकम 14,10,000 है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा है. सो 10 लाख से कहाँ तक? 14,10,000 तक मेरा इनकम कितना होगा? उस पर टैक्स 30%. सो लेट्स डू द कैलकुलेशन. 3 लाख माइनस 0 is 3 lakh. 3 lakh into 0% gives me 0. Okay, 5 lakh minus 3 lakh means 2 lakh. 2 lakh into 5% is how much? 10,000. Correct? अब आगे 10 lakh minus 5 lakh is what? 5 lakh. 5 lakh का 20% is how much? 1 lakh. Correct है ना? करेक्ट है. ओके, यस. अब 14,10,000 माइनस 10 लाख कितना आता है? डू नॉट, अगर समझ में नहीं आया है तो कॉपी करने की गड़बड़ मत करो. पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. पहले समझो कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, देन सॉल्व इट ऑन योर ओन. ओके, यस. सो 14,10,000 माइनस 10 लाख कितना आता है? 4,10,000. राइट, 4,10,000 का हाउ मच? 30% गिव्स मी हाउ मच? 1,23,000. सो व्हाट इज द टोटल टैक्स? What is the total tax? 2,33,000 becomes the entire tax liability. Getting it? I'll write it once again. 2,33,000 becomes what? Becomes the tax liability. Getting it? Okay. चलो, let's solve the next question. थर्ड के केस में क्या दिया था मैंने? क्या दिया था? मिस्टर बी. बराबर है. मिस्टर बी. अब बताओ उनका एज क्या है? मिस्टर बी का एज कितना था? हाउ मच? 80 ईयर्स. और इनका इनकम कितना था? 15 लाख रुपीज. ओके, तो चलो लेट्स डू द नेसेसरी कैलकुलेशंस. ओके, मिस्टर बी एज 80 ईयर्स, मतलब स्लैब 1, स्लैब 2 या स्लैब 3? स्लैब 3 विल बी एप्लीकेबल. तो 0 to हाउ मच? कम ऑन, 5 लाख. 0%. बराबर है ना? 5 लाख टू हाउ मच इज माई इनकम? 15 लाख, मतलब 10 लाख से ज़्यादा है, मतलब ये स्लैब तो एज इट इज़ आ जाएगा. बराबर है ना? राइट. अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट? इसमें 10 lakhs to 15 lakhs इट इज़ 30%. तो लेट्स डू द कैलकुलेशन. 5 लाख में से 0 गया तो 5 लाख. 5 लाख का 0% गिव्स यू 0. 10 लाख माइनस 5 लाख इज 5 lakhs. बराबर है. 5 lakhs का 20% gives me how much? 1 lakh. Right? Then 10 lakh minus 15 lakhs, that is 5 lakhs. 5 lakhs का 30% is how much? 1,50,000. So that means my total tax liability comes to 2,50,000. Any doubts? Any doubts, my dear students? Are you getting it? Do you understand?
Okay, yes, let's go ahead further and let's solve the last example. Okay, Mrs. B. Mrs. B का एज मैंने कितना बोला है 18 years और इनका इनकम कितना है, इनकम है 8,20,000. ओके, यस, नो प्रॉब्लम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, एक्स मिसेस बी बराबर है, रेसिडेंट है, एज 18 years है, स्लैब 1, स्लैब 2 या स्लैब 3, स्लैब 1. स्लैब 1 क्या कहता है 0 to 2.5 lakhs 0%. अब मेरा इनकम 8,20,000 है, हाँ, तो इस स्लैब में जाके मुझे रुकना है. ओके, 2.5 लाख to 5 लाख कितना 5%. अब नेक्स्ट स्लैब है 5 लाख to 10 लाख, बट मेरा इनकम 10 लाख से कम है, सो यहाँ पे स्लैब कितना आ जाएगा 5 लाख to 8,20,000. व्हाट इज इट 20%. समझ में आया. तो 2.5 लाख माइनस 0, सो 2,50,000 पे 0% gives me 0. Okay, further 5 lakh minus 2.5 lakhs, that is 2,50,000 पे भी 5% मतलब कितना आया 12,500. Getting it? Okay, yes. आगे 8,20,000 minus 5 lakh, 8,20,000 minus 5 lakh कितना आता है 3,20,000 and 3,20,000 पे 20% मतलब कितना आया 64,000. So what is the total tax liability? The total tax liability comes to 76,500. Getting it, my dear students? Congratulations to all those students who could solve it successfully. Okay, yes, at the end of the class I'm going to give you another 5 questions which you have to solve. Okay, for now we are moving ahead to the next concept of next concept of computation of tax liability. Okay, इसके पहले go to your tax rates printout. Okay, जो आपने लिख के लिया है. ओके, अगर आपने सेक्शन 4 को ठीक से पढ़ा होगा, अगर आपने सेक्शन 4 को ठीक से पढ़ा होगा तो सेक्शन 4 क्या बोलती है, क्या बोलता है सेक्शन 4? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम. वर्ड है टोटल इनकम, नॉट इनकम. वर्ड इज नॉट इनकम, वर्ड इज टोटल इनकम. सो हाउ टू कंप्यूट दिस टोटल इनकम हैज़ बीन टोल्ड टू यू हियर. ओके, मैंने एक फॉर्मेट दिया है जिस फॉर्मेट में आपको बताया जाएगा कि आपको टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करनी है. ओके, अब टोटल इनकम हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया ले लो. एंड नाउ एंड देन एज वी गो अहेड वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल विच इज़ गिवन इन दिस चार्ट. ओके, अभी सिर्फ ब्रॉडली समझ लो. हमने क्या देखा, इनकम टैक्स एक्ट में इनकम अर्न करने के बहुत अनलिमिटेड सोर्सेज है, बट इनकम आर क्लासिफाइड अंडर हाउ मेनी हेड्स, अंडर 5 हेड्स. विच आर दीज हेड्स? फर्स्ट इज सैलरी, house property, then PGBP, capital gains and other sources. So these are the 5 heads of income. तो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, ये सारे के सारे इनकम आप क्या करो, इन 5 हेड्स के अंडर क्लासीफाई करो और उनकी टोटल ले लो. ओके, इस टोटल इनकम में से लेस करो. क्या लेस करो? अगर कोई लॉसेज हुए हैं तो वो लॉसेस क्या करो, आप एडजस्ट कर लो. ओके, लॉसेस एडजस्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम. इस ग्रॉस टोटल इनकम में आप क्या करो, आपको जो डिडक्शंस दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऑप्शन 1 में क्या होता है, देयर आर वेरियस डिडक्शंस अवेलेबल, देयर आर वेरियस एग्जेम्पशंस अवेलेबल. बराबर है ना. ओके, बिफोर आई गो हेड माई डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सोचते होंगे मैम आप रुके नहीं, हमको लिखने का टाइम नहीं दिया. सी अंडरस्टैंड, पॉज करो वीडियो. ओके, और फिर आप सारे आंसर्स क्या करो, खुद से सॉल्व करो. सी अंडरस्टैंड, आप ये सारे से सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो. कॉपी डाउन करने में, गधा मजूरी करने में सिर्फ गधे पैदा होते हैं, राइट? इंटेलिजेंट बंदे पैदा नहीं होते. ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और एक बार अच्छे से सॉल्व करो, और जिसको अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो. ओके, यस, लेट्स मूव अहेड. कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. तो हमने क्या देखा, इनकम इज फाइनली क्लासिफाइड अंडर 5 हेड्स. तो क्या इनकम, तो हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त क्या करना है, इन 5 हेड्स को टोटल लेना है. फिर इसमें से कोई लॉसेस हो गए तो हमने उसको एडजस्ट किया. फिर क्या आता है, ग्रॉस टोटल इनकम. जैसे कि हमने ऑप्शन 1 में देखा कि ऑप्शन 1 क्या बोलता है कि देयर आर वेरियस एग्जेम्पशंस, देयर आर वेरियस डिडक्शंस, सबका फ़ायदा लो और फिर आप टैक्स कंप्यूट करो. ऑप्शन 2 क्या बोलता है, सारे डिडक्शंस छोड़ दो,
ओके अब कौन से डिडक्शन छोड़ने हैं, कौन से एग्जाम्शंस छोड़ने हैं, कौन से नहीं छोड़ने हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बट अभी बोल के कुछ फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज आपको कोई भी एग्जाम्शन कोई भी डिडक्शन पता ही नहीं है. सो एज एंड हाउ वी यू नो विल बी कवरिंग एवरी हेड. तो आपको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि ओके हमें ऑप्शन 2 में इसका एग्जाम्शन लेना है, इसका एग्जाम्शन नहीं लेना, ये डिडक्शन लेना है, ये डिडक्शन नहीं लेना. ओके इनकम टैक्स एक्ट जैसे कि मैंने आपको बोला था इज अ चक्रव्यूह. ओके ऐसा हम बोल नहीं सकते कि हमने पहला चैप्टर पढ़ा है तो वो इंडिपेंडेंटली होगा. ओके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट एट द राइट टाइम तभी एक्सप्लेन करने पड़ते है. ओके यस तो ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या होता है, डिडक्शंस लेस हो जाते हैं, फिर मिलता है क्या, नेट टोटल इनकम. ओके अब इस नेट टोटल इनकम पे, अब इस डिडक्शंस लेने के बाद जो नेट टोटल इनकम आता है, इस नेट टोटल इनकम पे क्या होता है, हमको टैक्स कंप्यूट करना होता है. सो फॉर नाउ अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर नाउ अभी तक हम लोग सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं अभी के लिए. मतलब टैक्स ऑन नेट इनकम कैसे निकालना, उसमें हम पढ़ ही चुके ऑलरेडी कि इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट होंगे, नॉन रेसिडेंट होगा तो कैसे अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा. इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, लेस रिबेट करो. ओके आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया है उसमें क्या करो, लेस रिबेट करो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रिबेट, लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स. रिबेट मतलब क्या, डिस्काउंट. रिबेट मतलब क्या, जो बेनिफिट आपको दिया जाएगा. ओके मतलब क्या, इट इज़ लाइक अ बेनिफिट टू टैक्स पेयर. ओके इट इज़ व्हाट, इट इज़ लाइक अ डिस्काउंट. इसीलिए तो उन्होंने क्या किया है, रिबेट को लेस किया है. इसलिए तो उन्होंने क्या किया है, रिबेट को लेस किया है. व्हाई, बिकॉज इट रिबेट रिड्यूसेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर. ओके रिबेट क्या है, रिबेट टैक्स पेयर का दोस्त है. वो क्या करता है, टैक्स लायबिलिटी कम करता है. इसलिए क्या बोला, क्या लिखा गया उधर, लेस रिबेट. सिर्फ बाय हार्ट करने में कोई पॉइंट नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. ओके अब ये रिबेट का कॉन्सेप्ट हम लोग ठीक से डिटेल में देखते हैं. ओके यस डू नॉट राइट एनीथिंग, आई एम गोइंग टू गिव यू एम्पल टाइम टू राइट. ओके यस सो rebate has been defined under and explained under which section, under section 87A, under section 87A. Now what is a rebate? Rebate is like a benefit to the tax पेयर. रिबेट इज वॉट, रिबेट इज लाइक अ बेनिफिट टू द टैक्स पेयर. इसलिए हम लोग उसको टैक्स लायबिलिटी में से क्या करते हैं, लेस करते हैं. उतना अपना टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस. ओके व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस. अगर अपने को रिबेट लेना है, अगर अपने को रिबेट लेना है तो व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस दैट यू नीड टू कॉम्प्लाई विथ. क्या प्रॉब्लम है इसकी, yes let us see what are the different conditions for what getting the rebate benefit. first हम देखते हैं कि ये रीबेट जो है वो किसको एप्लीकेबल है. ओके ये रीबेट जो है वो किसको एप्लीकेबल है, मतलब विच पर्सन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ रीबेट. मतलब कौन सा इंसान अपने टैक्स कॉम्प्यूटेशन के वक्त रीबेट को टैक्स लायबिलिटी में से लेस कर सकता है. नंबर 1 इट शुड बी व्हाट, इंडिविजुअल. एंड दिस इंडिविजुअल शुड बी व्हाट. अब जब मैं इंडिविजुअल बोलूँगी, ओके अब जब मैं इंडिविजुअल कहती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इंडिविजुअल कैन बी रेसिडेंट ऑल्सो एंड कैन बी नॉन रेसिडेंट ऑल्सो. ओनली एंड ओनली रेसिडेंट कैन टेक द बेनिफिट ऑफ रीबेट, नॉन रेसिडेंट कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ rebate. Okay so there are various conditions which need to be fulfilled in order to take the benefit of rebate. What are the conditions? first रिबेट का बेनिफिट कौन ले सकता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल ले सकता है. ओके इस रेसिडेंट इंडिविजुअल का मैक्सिमम इनकम कितना होना चाहिए रिबेट लेने के लिए, इस रेसिडेंट का मैक्सिमम इनकम होना चाहिए ₹5 लाख. अगर 5 लाख से ज़्यादा आपका इनकम, अगर 1 रुपया भी 5 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, आपको रीबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसका मतलब क्या है, रीबेट का बेनिफिट उनको दिया जाना है, उनको गवर्नमेंट उनको देना चाहती है विच आर एक्चुअली कवर्ड अंडर लोअर इनकम ग्रुप, जिनका इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है. ओके उनको रीबेट का बेनिफिट दिया जाएगा. ओके यस जस्ट एक्सक्यूज मी माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अ मिनट.
ओके, लेट्स कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो हमने क्या देखा, हम क्या देख रहे हैं अभी, वी आर गोइंग टू द टोटल इनकम में हम देख रहे हैं कि टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं। तो उसमें हमने अब तक क्या देखा, टैक्स ऑन नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल हमने देखा। नेक्स्ट रीबेट। ओके, रीबेट अंडर सेक्शन 87 है। रीबेट के कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट क्या है, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल ओनली। मैक्सिमम इनकम कितना होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए। ओके ओके, कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपए होना चाहिए। मतलब रीबेट वांट्स टू फोकस ऑन लोअर इनकम ग्रुप्स। अब हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ रीबेट? ओके, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ रीबेट अवेलेबल? लेट्स सी हाउ मच इज द amount of rebate available. Okay, yes, the amount of rebate available is, my dear students, the amount of rebate available is, please focus, tax payable. आपका कितना टैक्स पेएबल आया? हमने जो सीखा ना अभी, टैक्स कैसे निकालना है, टैक्स ऑन टोटल इनकम कैसे निकालना है। आपका कितना टैक्स आया? या ₹12,500, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, tax payable or 12,500, whichever is lower. Do you understand, my dear students? Okay, okay, अब ये 12,500 कहाँ से आया? क्या इसका लॉजिक मैं आपको बताऊं? Do you want to know the logic कि ये 12,500 कहाँ से आया? ओके अगर आप लोग स्लैब रेट्स देखते हो, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज फोकस, मैं आपको लॉजिक इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप कभी ये भूलो नहीं। अगर आपने स्लैब रेट्स देखे होंगे तो व्हाट आर द स्लैब रेट्स अंडर स्लैब 1, 0 to 2,50,000। ओके, इट इज हाउ मच, 0%, बराबर है ना। और नेक्स्ट पे क्या है, 2.5 lakhs to 5 lakhs इज हाउ मच, 5%, बराबर है। 5 lakhs के ऊपर अगर आपकी इनकम होगी तो आपको रिबेट अवेलेबल ही नहीं है, बराबर है ना। मतलब आप कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं तो 2.5 lakhs इंटू 0% गिव्स हाउ मच, 0 एज टैक्स। और यहाँ पे 5 लाख माइनस 2,50,000, 5 लाख माइनस 2,50,000 इज हाउ मच, 2,50,000। और अब 2,50,000 इंटू 5% करो, 2,50,000 इंटू 5% इज इट 12,500? यस। और इसका अगर टोटल टैक्स देखो तो 12,500। मतलब जिनका इनकम 5 लाख है उनका मैक्सिमम टैक्स कितना आ सकता है? मैक्सिमम टैक्स जो आ सकता है वो है 12,500, बराबर है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, आपका जो टैक्स आ रहा है, आपका जो एक्चुअल टैक्स आ रहा है वो, या आपका जो एक्चुअल टैक्स आ रहा है वो, या मैक्सिमम टैक्स जो आ सकता है, विच एवर इज लोअर विल बी द रिबेट अवेलेबल टू you. So this rebate is available to whom, my dear students? This rebate is available to resident individual जिसका maximum income 5 लाख होना चाहिए। अगर 5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी हुआ तो you will not get the benefit of rebate. How much is the amount of rebate that is available? Tax payable, that is actual tax जो payable आया है, जो हमने slab rates apply करके find out किया है, या 12,500 which is the maximum tax for income of 5 lakh. Okay, whichever is lower is the rebate available. Getting it, my dear students? Okay, so come on, quickly take this down, then we'll solve some a few questions, 3 questions on this rebate. Come on, fast.
Okay? Yes. Okay, let's continue further and let's solve a few questions on rebate. Okay? Yes. Now, we'll solve 3 questions on rebate. 1, 2, and 3. Okay? Assessee. Assessee ka shortcut, right? Abbreviation. Status. Let's see what is the status of the assessee. Then what is the age? Age and status both defines which slab will be applicable. Slab 1, slab 2 or slab 3. Then we have to check what is the income. Barabar hai na? Then we have to, based on the income, we'll decide as to at what stage you have to stop. So income, right? Then later what do we have after income? Now we have to calculate the tax, right? Now इस tax में से क्या होता है? इस tax में से rebate will be deducted, right? Rebate will be deducted and therefore we will have net tax. Okay? Yes, fine. Let's get started, my dear students. Okay? Say assessee 1. Okay? एक confusion नहीं रखेंगे. LMN. Okay? अर्लियर व्हाट वाज देयर अर्लियर, अगर पहले आपने देखा होगा, अगर आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, तो पहले क्या होता था कि मेल्स एंड फीमेल्स एट डिफरेंट स्लैब रेट्स हैड डिफरेंट एग्जेम्पशन लिमिट्स, राइट? बट अभी यहाँ पे क्या हो गया है, अभी सबको क्या चाहिए? इक्विवेलिज्म, राइट. उनका क्या बोलता है, उनका क्या कहना है? द फीमेल्स वांट टू से दैट वी डू नॉट वांट डिस्क्रिमिनेशन. हमको भी क्या चाहिए? देयर शुड बी कंधे से कंधे मिला के चलना है. इसलिए द फर्स्ट थिंग उनको कंधे से कंधे मिलाया, मतलब क्या किया? मेल्स और फीमेल्स में जो डिफरेंस था, ओके, स्लैब रेट्स का वो हटा दिया गया. राइट नाउ वी आर लर्निंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्स फ्रॉम विच पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम विच असेसीज पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली इंडिविजुअल्स. तो पहले हम इंडिविजुअल्स का ठीक से समझ लेते हैं. इंडिविजुअल्स का अगर हमारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए तो बाकी सारे पर्सन का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. ओके, यस. सो LMN. ओके, से अज्यूम करते हैं ये स्टेटस है R, इसका स्टेटस है NR और इसका स्टेटस है R. ओके, से L का एज है 45 ईयर्स, M का एज है 70 ईयर्स एंड N का एज कितना है? 62 ईयर्स. ओके, लेट्स अज्यूम द इनकम. कितना लेंगे? से इसका इनकम लेते हैं 4,50,000. ओके, इसका इनकम लेंगे से 4,80,000. ओके, एंड इसका कितना लेंगे? N का इनकम से लेंगे हम लोग 4,95,000. ओके, अब अपने पास क्या है? वी हैव द स्टेटस, वी हैव एज, वी हैव इनकम. अब हमको क्या करना पड़ेगा? टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, फर्स्ट in case of L, who is a resident whose age is 45 years and whose income is 4,50,000. Okay, fine. चलो, यस. अब एज कितना है? 45 ईयर्स. मतलब कौन सा स्लैब एप्लीकेबल होगा? स्लैब 1 विल बी एप्लीकेबल, राइट? लेट मी ट्राई समथिंग. ओह, दिस इज नाइस. फाइन. ओके, चलो अब आगे. ओके, यस. सो 0 to 2.5 lakhs 0%, right? 2.5 lakhs to how much is the income? इनकम कितना है? इसी स्लैब में आता है, बराबर है ना? तो हम लोग शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, हम लोग डिटेल में लिखेंगे. 2,50,000 to 4,50,000. कितना परसेंट? 5%. तो चलो करते हैं हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन. ओके, यस, फाइन. तो 2,50,000 माइनस 0, मतलब 2,50,000 पे 0%. जस्ट 1 मिनट, हैंग हो गया सिस्टम.
Okay, so 2,50,000, right? Up. 2,50,000 पे 0% is 0, right? And 4,50,000 minus 2,50,000 is 2 lakh. So 2 lakh पे कितना परसेंट बोला है उन्होंने? 5%. 2 lakh पे 5% will be how much, my dear students? 10,000. फाइन. नाउ दिस इज द टैक्स लायबिलिटी. तो मैं यहाँ पे जाके लिख दिया मैंने. टैक्स कितना है? 10,000. अब इंडिविजुअल के पास एक ऑप्शन है कि वो रीबेट ले सकता है. रीबेट के 2 कंडीशंस है. फर्स्ट, क्या एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए. क्या एल इंडिविजुअल है? ओके क्या एल इंडिविजुअल है. फिर इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए? रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट होना चाहिए. क्या रेसिडेंट है. ओके और इनकम कितना होना चाहिए? इट शुड बी विद इन 5 lakhs. इसका इनकम कितना है एल का? 4,50,000. सो इज ही एलिजिबल? इज एल एलिजिबल फॉर रीबेट? एब्सोल्युटली एलिजिबल. ओके सो चलो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका रीबेट का कैलकुलेशन करेंगे. रीबेट में हमने क्या देखा है? अमाउंट ऑफ रीबेट इज व्हाट? एक्चुअल टैक्स और मैक्सिमम टैक्स ऑफ 12,500 विच एवर इज लोअर. बराबर है ना? therefore okay, therefore rebate will be how much? 10,000 which is the actual tax or 12,500 whichever is lower. मतलब कितना हुआ? 10,000 is the amount of rebate. मतलब मेरा net tax. Therefore what is the net tax? Net tax payable is nil. So getting it? So मैंने यहाँ पे लिख दिया rebate कितना? Rebate will be 10,000. Therefore the net tax payable is nil. Getting it my dear students? Getting it? ओके पहले सारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर मैं आपको टाइम दूंगी लिखने के लिए. अभी कुछ भी गड़बड़ मत करो. लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दीज 3 एग्जाम्पल्स. कॉन्सेप्ट को पहले फर्स्ट फोकस अपना क्या होना चाहिए कि हमने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा. दैट शुड बी द फर्स्ट फोकस. ओके यस. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या देखा? एम है. ओके एम कौन है? एनआर है. राइट. एनआर का एज, एम का एज क्या है? एम का एज 70 ईयर्स है. और इसका इनकम कितना है? इसका इनकम है ₹4,80,000. नेवर माइंड. एब्सोल्युटली. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके यस. ओके लेट्स स्टार्ट. अब स्लैब रेट्स कौन से एप्लीकेबल होगी? स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3. एज कितना है? 70 ईयर्स. एज कितना है? 70 ईयर्स. मीन स्लैब रेट्स एप्लीकेबल विल बी हाउ मच? विल बी स्लैब 2 विल बी एप्लीकेबल. ओके राइट एवरीवन? स्लैब 2 विल बी एप्लीकेबल. yes or no? No, because M is NR. In case of NR, what are the slabs applicable? Always and always slab 1 is applicable irrespective of whatever age you are into. ओके तो M who is an NR भले ही वो 70 साल का क्यों ना हो, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 का ऑप्शन उसके पास नहीं है, उसको सिर्फ स्लैब 1 ही एप्लीकेबल होगा. 2.5 lakhs इज 0%. नेक्स्ट स्लैब में इसका इनकम आता है इसलिए 2,50,000 to 4,80,000. इनकम कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज? 5%. ओके नो प्रॉब्लम. सो 2.5 lakhs. So 2.5 lakhs minus 0 is 2,50,000 into 0%. Tax आया 0. 4,80,000 minus 2,50,000 is how much? 1,30,000. Yes or no? 1,30,000 into 5%. बराबर है ना? Yes. 1,30,000 into 5% will be how much? Sorry. 2,30,000. 2,30,000 into 5% will be how much? It will be 11,500. Therefore, the total tax liability comes to 11,500. So I go here and I first write down the tax liability as 11,500. Now let's see whether rebate is applicable or not. Okay? Yes, rebate is applicable to individual. Is M an individual? Yes. But individual should be resident or non-resident? Resident. But he is an NR. So will rebate be applicable here, my dear students? Okay, tell me, will rebate be applicable here? No, rebate will not be applicable. Okay, therefore net tax would be how much? Net tax payable would be 11,500. Okay, so let's go here and let's first write down that rebate is nil and the net tax payable is 11,500. Getting it, my dear students?
Getting it? Yes? Shall we go ahead? Okay, let's go ahead. In case of n. Okay? Yes, let's solve the third question. I'm going to give you time to write, my dear students. Do not worry. थर्ड क्वेश्चन. थर्ड में हमने क्या देखा? n. ओके, इन केस ऑफ n. ओके, n का एज, n कौन है? रेसिडेंट है. n का एज क्या है? 62 ईयर्स है. ओके, और n का इनकम कितना है? ₹4,95,000. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट. Yes. Okay. Let's start. So, R है और 62 ईयर्स है. मतलब स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3 का ऑप्शन है बिकॉज इज अ रेसिडेंट. मतलब स्लैब 2 में आएगा. व्हाट इज द स्लैब 2? 0 to 3 lakhs 0%. 3 lakhs to, कम ऑन, 3 lakhs to 5 lakhs है. इनकम 5 lakhs से कम इनकम है, इसलिए इसी स्लैब में हम लोगों को डिटेल में लिखना पड़ेगा. राइट, 5%. तो 3 लाख माइनस 0 इज 3 लाख. 3 लाख इंटू 0% कितना आता है आंसर? 0. बराबर है ना? 4,95,000 माइनस 3 लाख. 4,95,000 माइनस 3 लाख मतलब 1,95,000 इंटू 5%. इंटू 5% कितना आया मेरा टैक्स? 9750. सो टोटल टैक्स बिकम्स 9750. तो चलो मैं पहले यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया टैक्स लायबिलिटीज 9750. अब देखते हैं रीबेट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. रीबेट के कंडीशंस क्या हैं? इंडिविजुअल शुड बी व्हाट? पहले तो इंडिविजुअल होना चाहिए, तो एन इंडिविजुअल है. इंडिविजुअल शुड बी रेसिडेंट. क्या रेसिडेंट है. और तीसरा क्या है? उनका ये कहना है कि टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड 5 lakhs. यहाँ पे इसका इनकम कितना है? 4,95,000. देयरफॉर टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, विल रीबेट बी एप्लीकेबल? येस. नाउ रीबेट जो एप्लीकेबल होता है वो टैक्स से लेस होता है. कितना रीबेट अवेलेबल है? एक्चुअल टैक्स पेएबल 9750 और 12,500 विच एवर इज लोअर. तो कितना है? कितना आएगा? 9750 विल बी माई रीबेट. देयरफॉर नेट टैक्स विल बी हाउ मच? नेट टैक्स पेएबल विल बी nil. ओके, गेटिंग इट? तो यहाँ पे जाके मैं पहले लिख देती हूँ कि रीबेट अवेलेबल इज 9750 एंड नेट टैक्स पेएबल इज nil. गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? Do you get it? Okay, now I want all of you to take this down in the notebooks, then we'll move ahead to the next important concept. Okay, yes, come on, quickly take it down.
Okay, done my dear students. Okay, so this is the concept of rebate. Okay, now let's again go to the computation of total income chart. Okay, तो हमने अब तक क्या देखा, हमने tax on total income देखा, right? हमें slab rates देखा. There are slab 1, slab 2, slab 3 available in case of resident individual, and only slab 1 is available in case of non-resident individual. Right now we are studying option 1 first in detail, and then we shall go to option 2. ओके यस देन हमने क्या देखा, इस टैक्स में से क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है रीबेट. रीबेट इज लाइक अ डिस्काउंट इन द टैक्स लायबिलिटी, इसलिए उसको क्या किया जाता है, लेस किया जाता है. तो फिर हमें यहाँ पे क्या मिलता है, नेट टैक्स मिलता है, राइट. टू दिस नेट टैक्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज सरचार्ज. हमको सरचार्ज क्या करना है, ऐड करना है. सी दिस सरचार्ज इज द एक्स्ट्रा चार्ज विच इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट. It is an extra charge collected by government. Why is this extra charge collected by the government? Okay, government क्या करती है, जो करोड़पति है, okay, जो करोड़पतियों है, जो पैसे वाले हैं, जो अमीर लोगों से पैसे लेके गरीबों के पास देती है. मतलब जिनका इनकम एक्स्ट्रावैगेंट है, इस एक्स्ट्रावैगेंट इनकम पे क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को सरचार्ज कलेक्ट करता है. गवर्नमेंट हायर द इनकम, हायर द सरचार्ज. करोड़पतियों से पैसे लेके गवर्नमेंट क्या करता है, गरीबों को देता है. मैंने करोड़पति क्यों यूज़ किया, ये वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया बिकॉज यूजुअली क्या होता है, सरचार्ज जो एप्लीकेबल होता है, दैट इज एप्लीकेबल टू दीज हायर इनकम ग्रुप्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो अब हम पहले राइट नाउ इन टुडेज सेशन वेट आई एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया रिबेट से रिलेटेड. फर्स्ट वो लिख लो, फिर हम लोग सरचार्ज पे आगे बढ़ते हैं. ओके यस, रिबेट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे लिख के रख दो, दैट रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल. Rebate is not applicable, not available in case of long-term capital gain under section 112A. Rebate is not available, okay, on long-term capital gain under section 112A. Now what is a long-term capital gain, what is 112A, अभी आपको पता नहीं है. जब हम capital gains पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे what is meant by long-term capital gain. At that time हम लोग section 112A देखेंगे. At that time I shall remind you this concept once again. Right now सिर्फ rebate के वहाँ पे एक mention करके रख लो ताकि आपको revision करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त कोई भी डिस्टर्बेंस ना होगा. सो रिबेट इज नॉट अवेलेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज. सरचार्ज मैंने क्या बोला, सरचार्ज इज एन एक्स्ट्रा चार्ज विच इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट टैक्स लेती ही है, बराबर है, आपको रिबेट भी देती है, बट आपका जो नेट टैक्स है उस पर सरचार्ज भी लेती है. ओके, सरचार्ज का मेन इंटेंशन क्या है, अमीरों से पैसे लेके गरीबों को देना. इट इज एन एक्स्ट्रा चार्ज ऑन द टैक्स. ओके, एक्स्ट्रा चार्ज कैसे कैलकुलेशन करना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगी. इन टुडेज सेशन आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू अ टैक्स लायबिलिटी. जो सरचार्ज के रेट्स हैं वो हम लोग मेंशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन ओके हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में. तो लेट्स सी व्हाट इज द रेट्स ऑफ सरचार्ज. डू नॉट राइट एनीथिंग, आई गिव यू एम्पल टाइम टू राइट. ओके, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. दिस इज़ वेरी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. रीबेट, सरचार्ज, इसके बाद हम लोग मार्जिनल रिलीफ देखेंगे. एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सरचार्ज इज व्हाट, इट इज़ एन एक्स्ट्रा चार्ज विच इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, सरचार्ज के लिए क्या है, इनकम एंड परसेंटेज ऑफ सरचार्ज. ओके, अब देखते हैं हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ सरचार्ज. ओके, अगर आपका इनकम 50 lakhs से ज़्यादा है, इफ़ योर इनकम इज मोर देन 50 lakhs, ओके वेट फर्स्ट आई गिव यू वन मोर स्लैब रेट हियर. ओके, अप टू 50 lakhs, मतलब अगर आपका इनकम 50 lakhs है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा क्या, नॉट एप्लीकेबल, 0%. ओके, बट अगर आपका इनकम 50 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा हुआ, ओके, बट योर इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ भी अगर आपका इनकम होगा देन आप इस स्लैब में कवर होंगे. देन द सरचार्ज रेट एप्लीकेबल इज 10%. अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, ओके, बट इट इज़ व्हाट, इट इज़ नॉट मोर देन 2 crores, इट इज़ नॉट मोर देन 2 crores, मतलब अगर आपका इनकम 2 करोड़ भी होगा तो आपको सरचार्ज रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा, 15% का एप्लीकेबल होगा. इफ़ योर इनकम, okay, if your income, sorry my dear students,
यस, अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, ओके, बट इफ इट इज़ नॉट मोर देन 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ का भी इनकम अगर होगा तो ये कौन से स्लैब में कवर होगा, इस स्लैब में कवर होगा। ओके, अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है बट इट इज़ नॉट मोर देन 10 करोड़, देन द सरचार्ज रेट एप्लीकेबल टू यू इज़ 37%। अगर आपका इनकम इज़ मोर देन 10 करोड़, इवन देन द सरचार्ज रेट एप्लीकेबल इज़ 37%। ओके, तो अगर आप देखोगे तो मैंने क्यों करोड़पति यहाँ बोले, वाई डिड आई यूज़ द वर्ड करोड़पति? करोड़पति लोगों से पैसे लेके गरीबों को बांटने का काम है, ये काम करती है गवर्नमेंट सरचार्ज कलेक्ट करके। ओके, गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंट इनकम हो रहा है तो इस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो अप टू 50 lakhs द सरचार्ज रेट इज 0%। इफ योर इनकम इज मोर देन 50 lakhs बट अप टू 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ का भी इनकम होगा तो आप 10% सरचार्ज आपको चार्ज होगा। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट इट इज़ नॉट मोर देन 2 करोड़, मतलब इवन इफ योर इनकम इज 2 करोड़ यू विल हैव सरचार्ज ऑफ 15%। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है बट इट इज़ नॉट मोर देन 5 करोड़, मतलब अगर आपका इनकम 5 करोड़ भी है तो आपको सरचार्ज रेट एप्लीकेबल रहेगा 25%। ओके, अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है बट अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा है बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, मतलब अगर आपका इनकम 10 करोड़ भी होगा तो भी आपको सरचार्ज रेट एप्लीकेबल होगा 37%। एंड इफ योर इनकम इज मोर देन 10 करोड़, इन दैट केस सरचार्ज रेट एप्लीकेबल इज 37%। क्या आपको ये रेट्स बाय हार्ट करने पड़ेंगे? एब्सोल्युटली यस, ये रेट्स बाय हार्ट करना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कम ऑन विथ मी माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, हमने आज क्या देखा? रीबेट देखा। रीबेट इज एप्लीकेबल, कंडीशंस क्या है? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ रीबेट अवेलेबल, एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। इसमें एक स्पेशल पॉइंट हमने क्या देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है, उसमें से रीबेट का बेनिफिट नहीं मिलता। रीबेट क्या करता है? रीबेट इज लाइक अ डिस्काउंट फ्रॉम द टैक्स लायबिलिटी। फिर उसमें नेक्स्ट क्या ऐड होता है? नेक्स्ट क्या ऐड होता है? टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते वक्त नेक्स्ट हमने क्या देखा? उसमें ऐड होता है सरचार्ज। सरचार्ज के रेट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपकी इनकम अप टू 50 lakhs है, सरचार्ज अवेलेबल इज 0%, सरचार्ज एप्लीकेबल इज 0%। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है अप टू 1 करोड़ 10%, मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ 15%, मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ 25%, मोर देन 5 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ 37%, ओके, मोर देन 10 करोड़ 37%। सो कम ऑन एवरीवन, वंस अगेन, 50 lakhs 0%, up to 1 crore 10%, up to 2 crore 15%, up to 5 crore 25%, and 10 crores or above 37%. Okay, these rates, this 25% and 37% rates of surcharge are known as, okay, these are known as enhanced surcharge rates. They are known as enhanced surcharge. Why? Because they are enhanced. rates बहुत ज़्यादा है इसलिए enhanced surcharge इनको कहा जाता है। गेटिंग इट माई डियर स्टूडेंट्स? मतलब हायर द इनकम हायर द सरचार्ज, जितना आप ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट सरचार्ज आपसे चार्ज करेगी और वो पैसा लेके गरीबों में बांटेगी मतलब क्या? ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा जैसे राजा महाराजा गोल्ड कॉइन्स बेचते थे, वैसा नहीं होता है। ओके, इट इज़ यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर, इट इज़ यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर। ओके, यस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने रीबेट में देखा था, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इन केस ऑफ डिविडेंड, in case of dividend, in case of long term capital gain, in case of dividend, in case of long term capital gain, okay, long term capital gain for FIIs, financial institutional investors, okay, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके, मैक्सिमम सरचार्ज इज हाउ मच? मैक्सिमम सरचार्ज इज 15%, मतलब इनको एनहांस सरचार्ज जो है, इनको enhanced surcharge of 25% और 37% is not applicable. मैक्सिमम उनको कितना है सरचार्ज? मैक्सिमम सरचार्ज कितना रहेगा? 15% का रहेगा। मैक्सिमम सरचार्ज वुड बी 15%। डिविडेंड इनकम पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना होगा? 15% होगा। एनहांस सरचार्ज ऑफ 25% और 37% इज नॉट एप्लीकेबल वॉट एवर बी द इनकम। अंडरस्टैंडिंग माई डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस। अब एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को जाने से पहले। ओके, अब हमने क्या देखा? अब हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में क्या देखा? पहले हम टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालते हैं। टैक्स ऑन इनकम निकालने के बाद इसमें से रिबेट लेस होता है। इसमें रिबेट लेस होने के बाद आपको जो नेट टैक्स होता है, इसमें क्या होता है? इसमें सरचार्ज क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। राइट। बट माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा है? रीबेट कितने पे एप्लीकेबल है? रीबेट में इनकम का लिमिट है 5 लाख,
बट सरचार्ज इज ऑब्वियसली एप्लीकेबल टू व्हाट, हायर इनकम ग्रुप्स. मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जिनको सरचार्ज एप्लीकेबल है उनको रिबेट नहीं मिलेगा, बराबर है ना. मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम. रिबेट का सवाल ही नहीं आता बिकॉज दीज आर हायर इनकम ग्रुप्स. और इस पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एड सरचार्ज हो जाएगा बिकॉज सरचार्ज एप्लीकेबल ही उन लोगों को है जिनके पास बहुत पैसा है, राइट. दिस बिकम्स टैक्स प्लस सरचार्ज. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. ओके ये बस कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं. ओके येस, दीज सेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लीज रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स. ओके प्लीज होमवर्क अच्छे से करके आना. आई एम गिविंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. अभी मैम रिबेट और सरचार्ज पे क्वेश्चंस नहीं दे रही राइट नाउ. टुडे आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशंस इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, जो आपको अच्छे से करके आना है. एक बार ये आपको अच्छे से आ गया, then what, then we can you can go ahead and tomorrow I'll give you an examples on rebate and surcharge. Come on, now I want you to take this down, these rates of surcharge. First take this down, okay, write it in your notebooks, and then further I'll give you the homework. Come on, quickly jot it down in your notebooks. Okay, yes, if you want you can take this down also, just if you want. If you don't want, take down the homework. Assessee, status, age, income, and what will be the tax. Rebate and surcharge we shall not be going ahead right now. Okay, say okay, say what will we take the names as P, Q, R, S, T. Okay, status NR, R, NR, NR, R. Let's take the age as 62 years, 25 years, then take the age as 69 years, okay, then 55 years and 62 years. इनकम लेते हैं अभी इनका 11,50,000, then 19,50,000, then let's say the income is 3 lakh. इसका इनकम लेंगे कितना लेंगे, 12,50,000 लेंगे. ओके और इसका इनकम कितना लेंगे, चलो 24 लाख ले लेते हैं. ओके 24 lakhs. I want you all to compute the normal tax slabs under slab 1, slab 2, slab 3 for an individual. Okay, yes my dear students, अच्छे से होमवर्क करना, अच्छे से रिवाइज करना. ये कॉन्सेप्ट्स बेस है. अगर ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे तभी हमको विल बी अ प्रो इन डायरेक्ट टैक्सेस. ओके बिलीव मी, ट्रस्ट मी, रिविजन करना और होमवर्क अच्छे से सॉल्व करके आना. यू विल सी दैट यू विल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट. इट इज सो वेरी मच इंटरेस्टिंग. Okay, thank you very much my dear students. Till then take care and bye bye.